एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੀਤ ਗੁਪਤਾ, दीप्ति गुप्ता, नितिन गुप्ता, नेहा गुप्ता, मिशिका गुप्ता, अनव गुप्ता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਵਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। माया रूपी जाल है आपका, वो जीव को घेर लेता है और संसार में और परिवार में पढ़ करके जीव भजन करना भगवान का भूल जाता है। तो भगवान ने कहा कि देखो वरुण जी, चाहे जीव मोह में फंसता हो, चाहे उदर पूर्ति में फंसता हो, चाहे परिवार के पालन में फंसता हो, अंत हो गत्वा, अंत में यदि जीव दोनों भुजा उठा करके मुझसे कहे कि हे हरि मैं आपका हूँ, हे हरि मैं संत हूँ, तो मैं उसको और किसी झंझट में पड़ने नहीं देता, अपने धाम बुला लेता हूँ। परंतु अंत में भगवान का नाम आता नहीं है। अगर जीव के सुंदर कर्म हो तो संतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उस जीव का पुनः पुनः चिंतन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो चिंतनीय हैं। कर्मों से लोग प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा कैसे कर्मों से? जो सुंदर कर्म हो, सुशील कर्म हो। तो भगवान ने कहा कि अंत हो गत्वा, अंत में यदि कोई मेरा स्मरण करे, दोनों भुजा उठा करके कहे कि हरि मैं आपका हूँ, तो अंत में ही क्यों किया जावे? हमेशा ही भगवान के लिए, भगवान के होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने ये कहा। क्यों? भगवान कहता है जिस प्रकार से माता पिता के ऊपर संतान मलमूत्र का त्याग करती है, उसको माता पिता उठा करके फेंकते नहीं है, वैसे ही मैं अपने जीव को छोड़ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य देह की देवता भी याचना करते हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा। वेदों में
अनन्य बार बखान किया गया है कि बड़े भाग्य से हमको ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से ही ये संभव है। और भगवान कभी किसी जीव को छोड़ते नहीं है। और भगवान ने कहा कि जिन पुत्रों के द्वारा 10 गात्री कर्म संपन्न किए जाते हैं, ब्राह्मण भोज संपन्न किए जाते हैं, गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, 16 प्रकार के जो पुत्रों के द्वारा दान दिए जाते हैं, तो उस आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। ऐसे पुत्रों की याचना समस्त संसार के पितृगण करते हैं कि हे भगवान, हमारे कुल में, हमारे परिवार में कोई हरि का भक्त हो जो अपने पितरों के प्रति अपनी और दैहिक क्रियाओं को संपन्न कर सके। परिवार के द्वारा विधि विधान से समस्त क्रियाओं को संपन्न किया गया। और अनन्य भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि भक्तों को कभी भी भगवान अपने से दूर नहीं करते। इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। समस्त समाज भगवान से निवेदन करते हुए हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हे हरि, जगत में आना जाना लगा रहता है, परंतु जो देह आज सम्मुख हमारे विराजमान हैं, ऐसी सेवा हम सभी को प्राप्त होवे। क्योंकि देखो, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता। जिस दिन बाबूजी का हरिधाम वास हुआ है, उससे मात्र 12 घंटे पहले जलंधर में हम लोग विवाह पढ़ा रहे थे। पूरी रात महाराज जी की चर्चा चलती रही 2 ब्राह्मणों के बीच में कि भैया फलाने दिन की शिवरात्रि है, बाबूजी के द्वारा सेवा मंदिर में की जाती थी, फूल बंगला, कोई भी सेवा कहो। तुरंत उन्होंने हाँ करनी और हमारे कहने से पहले उन्होंने इस चीज की उपस्थिति कर देनी। 2, 4, 10 हजार की कोई कीमत नहीं है। सुबह 7 बजे पता लगा कि बाबूजी जिस समय से हम याद कर रहे थे, उसी समय वो हरि के धाम का गमन कर रहे थे। तो कोई सुंदर आत्मा होती है जिसके बारे में संत और ब्राह्मण चर्चा करते हैं। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि परिवार के शांति के लिए और संतोष के लिए भगवान के सुंदर 2 शब्द अपने मुख के द्वारा कहें। बोलो करुण भगवान की। श्वास श्वास पे कृष्ण कहे, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। आए हुए सभी शहर निवासियों, सभी माता बहनों, सीता माता मंदिर के सभी सदस्य, भाई बहन, आप शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय श्रीमान श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में आज नहीं है, शरीर नहीं है, एक निराकार के रूप में, एक तस्वीर के रूप में उनका फोटो हमारे सामने है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम सभी शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। उनकी आत्म शांति के लिए हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, उस दिवंगत आत्मा को आप अपने चरणों में जगह दें और परिवार में जो दुख हुआ है उसे सहन शक्ति करने की सामर्थ्य प्रदान करें। परिवार में पीछे से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण गुप्ता जी और बड़े पुत्र विनीत गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी दीप्ति गुप्ता और पौत्री शिवका गुप्ता, दूसरे छोटे पुत्र श्री नितिन गुप्ता जी, उनकी पुत्र वधू नेहा गुप्ता और पौत्र अनव गुप्ता। परिवार में बहुत शोक हुआ है। बाबूजी के जाने के बाद में धर्मात्मा, धर्म को धारण करने वाले और सभी को धर्म के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे महान पुरुष जब परिवार को
मित्रगणों को छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। उनकी आत्मा धर्म में प्रेरित, धर्म की ओर प्रेरणा करने वाले, जिन्होंने धर्म का धारण किया और धार्मिक संस्थाओं की तरफ बहुत ही स्नेह था, जो अपनी आत्मा को, जो अपने प्राण को दान करने वाले हैं, उनको महान कहा जाता है। जिन्होंने भगवान की प्रतिमा स्थापित कराई, आज हम उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उपस्थित हुए। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप उस आत्मा को अपने चरणों में जगाएं। आत्मा के विषय में गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि आत्मा के विषय में आप बताइए कि आत्मा को क्या कष्ट होता है, भगवान ने कहा, अर्जुन, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य जैसे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। जैसे मकान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नया मकान बनाते हैं, नए मकान में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। शरीर को कष्ट होता है, शरीर ही शुभाशुभ कर्मों को भोगता है। भगवान कहते हैं, नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावक न चैनम कलेदयन्तापो न शोष्यति मानु। भगवान ने कहा, अर्जुन, आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल गला नहीं सकता, आत्मा को पवन सुखा नहीं सकता। आत्मा तो अजर और अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार बहुत सी अग्नि में से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार परमात्मा से आत्मा अलग होता है। परमात्मा का ही अंश आत्मा है। उस आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। वह आत्मा नए नए शरीर धारण करती है। जो धर्मात्मा प्राणी होते हैं, वो धर्म द्वार से, पूर्व द्वार से भगवान धर्मराज की सभा में जाते हैं और धर्मराज ऐसे धर्मात्मा प्राणी का सत्कार करते हैं, स्नेह करते हैं, मित्र जैसा भाव करते हैं, आसन देते हैं, पाद्य अर्घ आचमन कराते हैं और बैठे हुए मुनि जनों से कहते हैं कि पुण्य आत्मा मृत्यु लोक से आया है और यह हमारे मंडल का भेदन करके वैकुंठ को जा रहा है। ऐसी आत्मा गुप्ता जी के स्वर्ग गमन के बाद जो पुत्रों को दुख हुआ है, असहनीय है, लेकिन ये निश्चित है कि माता पिता का ही आशीर्वाद पुत्रों को पूर्ण करता है। उस पिता के द्वारा ही पुत्रों को जो भी मिला, विद्या प्राप्त हुई, व्यवसाय प्राप्त हुआ, पिता के आशीर्वाद से। और पुत्रों को धर्मात्मा मार्ग पर चलना, धर्म की होली को धारण करना, व्यापार को संभालना और धर्म संस्थाओं में स्नेह रखना, प्रीति रखना, धर्म करना, यही उत्तम प्रेरणा होती है। इसी से परिवार में वृद्धि होती है, कुल में वृद्धि होती है, उसे ही हम धर्मात्मा कहते हैं। धर्मात्मा प्राणी पूर्व द्वार से, उत्तर द्वार से, पश्चिम द्वार से धर्मराज की सभा में जाते हैं और अनेक सुख भोगते हैं और अच्छे कुल में, परिवार में वह उत्पन्न होते हैं। उनको कोई कष्ट नहीं होता,
उन शरीरों को भी कोई कष्ट नहीं होता। जो शरीर धारण करते हैं उन्हें अच्छा स्वर्ग मिलता है। हम भजनों के माध्यम से जिस प्रकार शरीर आता है और परमात्मा इस शरीर का निर्माण करता है, 5 तत्वों से निर्माण होता है। शरीर को प्राप्त करके हम धर्म कर्म करें, यही प्रेरणा हमें संत देते हैं, यही प्रेरणा ग्रंथ देते हैं। ग्रंथों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हम चेतन होकर हम भगवान का भजन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। तुलसिया संसार में सबसे मिली धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये 5 तत्वों का शरीर प्राप्त हुआ। कवि ने कहा कि ये शरीर चादर रूपी है। ये शरीर प्राप्त करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। बड़े भाग्य से ही मानव शरीर मिला और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान का भजन करें, दान करें। जदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस भीनी। जदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। जदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9 10 मास पुनन को लागे, 9 10 मास पुनन को लागो। मूरख में भी दीनी जदरिया दीनी रे दीनी। हे राम नाम रस
पूरी चादर पुन घर आई। शरीर बन जाता है, बहुत ही सुंदर होता है। ये चादर रूपी शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जब पूरी चादर पुन घर आई, रंग रेती को दीनी चदरिया, रंग रेती को दीनी। ऐसो रंग रंगो रंग रेज ने, ऐसो रंग रंगो रंग रेज ने, लालो लाल कर दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। हे राम नाम रस दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ऐसे धर्मात्मा हुए जिन्होंने हमारी तरह ही शरीर प्राप्त किया, लेकिन भगवान का भजन करके उन्होंने महान पद प्राप्त किया। ध्रुव जी हुए माता की आज्ञा का पालन करने वाले, वो आज भी जीवित है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की जो धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। राम नाम रस दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। हे राम नाम रस दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। इस प्रकार ये चादर रूपी शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करने से प्राणी वैकुंठ में वास करता है। माता निर्माता भवती। प्राणी जब गर्भ में आता है तो माता उसका निर्माण करती है। सबसे पहला माता गुरु, देवता और भगवान भी माता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। दूसरा स्थान पिताजी का आता है। पिता की याद बहुत आती है, हर समय याद आती है। उत्सव पर, विवाह इत्यादि शुभ अवसरों पर भी पिता की बहुत याद आती है। पिता का स्नेह अपार होता है। पिता ही परमात्मा के स्थान पर होता है। जिस पिता ने पालन पोषण किया है वही पिता है, परमात्मा का ही अंश पिता है। हम उनको बार बार याद करते हैं। ऐसे धर्मात्मा प्राणी संसार में आते हैं और अपना कार्य पूर्ण करके चले जाते हैं। सबसे उत्तम मार्ग जो उन्होंने बतलाया है धर्म कर्म करवाने का, धर्म कर्म कराने का, वो हमें प्रेरणा दी है। श्री सीता माता मंदिर में जो मूर्ति स्थापना कराई है उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। हम जब भगवती के दर्शन करेंगे तो धर्मात्मा प्राणी आदरणीय श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी की हमें अवश्य याद आएगी। ऐसे धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग को चले जाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। संसारी लोगों को, मृत लोक निवासियों को प्रेरणा देते हैं कि आप राम नाम जपो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते
जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा हो राम कहाँ से आए। जिस मन में मान भरा हो राम कहाँ से आए। घर में हो अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। राम नाम एक ज्योति है। राम नाम एक ज्योति है जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है इसमें मैल ना आने देना। जो आत्मा है जो बोलता पुरुष है वही परमात्मा का अंश है। जिस मन में अवमान आ जाए तो भगवान कभी भी प्राप्त नहीं होते। भगवान की कृपा भगवान का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता जिसके मन में अवमान आ जाए। संतों ने कहा अरे अवमान नहीं करना। अवमान करोगे तो भगवान नहीं आएंगे और अवमान को त्याग दोगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे। मन भगवान का मंदिर है इसमें मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है इसमें मैल ना आने देना। जन्म हीरा अनमोल है इसे गंवाना देना। हीरा जन्म अनमोल है इसे गंवा नहीं देना। निर्मल मन से दर्शन होंगे। निर्मल मन से दर्शन होंगे पाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कीधे अजा मिले और गणका में ऐसी करी कमाई। कीधे अजा मिले और गणका में ऐसी करी कमाई। राम राम को कहते कहते तर गए सदन कसाई। राम नाम को जपते जपते तर गए सदन कसाई। पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं। पत्थर से प्रभु प्रगटे प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। इस प्रकार भगवान का नाम जपने से ही प्राणी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गिरिराज जटायु ने नाम जप के भगवान की सेवा करके वैकुंठ पाया। हमारे बीच में सीता माता मंदिर के सदस्य बाबूजी को श्रद्धांजलि देंगे और भी नगर में से जो भी आए हो। बाबूजी का गुप्ता जी का बहुत स्नेह था। सभी मित्र वर्ग हैं। श्री
सीता माता मंदिर के सदस्य सभी अपनी वाणी में अवश्य श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आपके समक्ष। ओ अंकल जी जिन्होंने मैं तो अंकल जी कहता सी, बहुत ही धार्मिक और एक ऊर्जावान इंसान सी। हमेशा उन्होंने कभी नैगेटिव गल नहीं सोची सी। मैं काफ़ी टाइम तो उन्होंने नाल मेरे फादर साहब ने काम किया, मैं भी बहुत देर तो उन्होंने नाल जुड़ के काम कर रहा सी। उन्होंने एक बहुत अच्छी गल सी कि हमेशा पॉजिटिव रहते सी। कभी भी कोई गल की सलाह लैन वास्ते, कोई भी गल वास्ते उन्होंने कभी कॉल करनी तो पॉजिटिव एनर्जी देते सी। उन्होंने कोल बैठ के हमेशा पॉजिटिव गल्लां सुनने को मिलदियां सी। जदों सानू भी कभी मौका मिलिया उन्होंने कोल बैठन का, तो बहुत ही सही ढंग के विचार और पॉजिटिव एनर्जी जो असीं उन्हां तों लैंदे सी, वो घाटा शायद सानू कभी पूरा नहीं होएगा। परिवार को तो जो उस घाटा है ही है, समाज में उन्होंने बहुत बड़ा घाटा है। आज तक कोई भी बंदा उन्होंने को किसी भी समस्या का समाधान लैके गया तो उन्होंने कभी मत्थे वट नहीं सी पाया। उहदा वध चढ़ के उहदा संयोग किया और उन्होंने सही रास्ता दिखाया। जो अज एकदम अकस्मात उन्होंने निधन हो जाना, बिल्कुल स्वस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं। असी उत्थे सी मनीष जी दे नाल, मतलब अद्धा घंटा पहले उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं सी, अद्धा घंटे बाद उन्होंने ऐसा एकदम चलाना कर जाना। परिवार के नाल समाज में बहुत बड़ा घाटा है। पदम पिता परमात्मा अगे ही अरदास है कि उन्होंने परिवार को इस दुख सहन की शक्ति प्रदान करे। उन्हों का समाज के विच बहुत ही विचरना सी, अलग अलग संस्थावां दे नाल। अज सारे लुधियाने दे विचों उन्होंने पदाधिकारी उन्होंने सभा के श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। भगवान राम चैरिटेबल हॉस्पिटल के प्रेजिडेंट सुरेश सरूजा जी, डॉक्टर गुरशरण गिल, डॉक्टर मनोज जैन और सारे मैंबर्स इतने लोक सभा श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड कमल बसी जी, यशपाल प्राशर जी और उन्होंने तमाम साथी सारे मैंबर्स इस शोक सभा के श्रद्धा के सुमन भेंट करने आए हैं। श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी तो श्री अशोक जैन जी की श्रद्धांजलि परिवार के नाल संवेदना आई है। ज्ञान स्थल श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा सुमानी बिल्डिंग चौंक तो परिवार के नाल श्रद्धांजलि शोक सभा शोक संदेश आया है। आर्या समाज सभा रजिस्टर्ड बराड़ा अंबाला हरियाणा तो शिव आर्या जी जो खुद भी विराजमान है, परिवार के नाल शोक शोक प्रस्ताव लेके आए हैं। विक्की डाबर जी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। कमला लोटिया सनातन धर्म कॉलेज डॉक्टर जेश मरवाहा जी प्रिंसीपल परिवार के नाल संवेदना प्रकट कर रहे हैं। श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड तो सुनील अग्रवाल जी प्रेजिडेंट परिवार के नाल इन्हों के बहुत अच्छे रिश्ते ने। शोक सभा के परिवार के नाल संवेदना प्रकट करना आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री महावीर नारिया जी रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल तो परिवार के नाल संवेदना प्रकट करना आए हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। साढ़े इस इलाके के एक्स काउंसलर सुभाष डावर जी श्रद्धा के सुमन भेंट करने बाबू जी को मैं बेनती करांगा। सुभाष डावर जी मंच पे विराजमान पूजनीय पंडित जी महाराज और सामने बैठे मेरे भैनों के भरा, मेरा एक बचपन सुभाष गुप्ता जी दे हथों गुजरिया है। असी अज दे नहीं, अज पड़ोसी भी हैं मेरे नाल, उन्होंने रिहाइश भी उत्थे है। मन भरदा भी जिन्हों के हथों च असी खेडे साढ़े को चले गए। मैं अपने वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों लुधियाना वालों इन्हों के चरणों फुल अर्पण करना और पिछले परिवार को सहन की शक्ति करना। ओम शांति शांति। जिदा कि गुप्ता जी हमेशा ही
ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।